Good morning to you all, dear friends. Today we shall be discussing another chapter of our syllabus. The name of our chapter is An Amazing Ancestor, एक अद्भुत पूर्वज. About the chapter. This chapter is about the typewriter. How was it invented and when? And what were the characteristics of it? Now, its new form is known as QWERTY keyboard. In this chapter, we shall be discussing about typewriter and when was it invented and who invented and what were its characteristics or features of it. Nowadays, it is commonly known as QWERTY keyboard. So, dear friends, here we go with our chapter. Many children have never seen it, yet without the typewriter there would not have been a computer as we know it. The typewriter is the ancestor of the personal computer that is such a major part of our life. In this today's world, we children do not know what is typewriter. I hope many of you had seen it or have gone through any shops that have typewriter, but in modern days we find very few of them being used because it is replaced by personal computer and keyboard, that is what QWERTY keyboard. Did you wonder why computer keyboards and now some mobile phones as well have the strange layout that they have with the QWERTY keys across the top left? क्या आपने कभी सोचा है कि जो अपने मोबाइल फोन से या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड है वह उसका जो लेआउट है, उसका जो ढांचा है वो अलग अलग प्रकार से क्यों है? उनकी जो कीज है, उनके जो बटन से वो एक साथ अल्फाबेट में क्यों अरेंज नहीं किए गए? The answer lies buried in decisions made more than 100 years ago when the typewriter first appeared. और इसका आंसर अपने को 100 years ago 100 साल पहले मिलता है जब पहली बार टाइपराइटर का आविष्कार या उसकी खोज हुई थी. The placement of the letters in this odd way in the QWERTY keyboard was invented to prevent frequently stuck keys from colliding. अब क्या होता है कि अगर अपन ABCD एक ही लाइन में लगाते तो उनको रिपीट होने या गलत बटन दबने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो जो भी कीज ज़्यादा फ्रीक्वेंटली या बहुत बार या ज़्यादा यूज़ की जाती थी वो कोलाइड ना हो. कोलाइड मीन्स ओवरलैप ना हो या एक के ऊपर एक ना हो आ जाए, इसके लिए इसको ऐसा बनाया गया. Thus E was next to the W and so on. और इसी प्रकार E के पास क्या है कीबोर्ड में? W. As people became ever faster typists, this was an important consideration. और लोग फास्ट टाइप करने लगे, फास्ट टाइपर बनने लगे, तो इसके कारण इसे भी एक इम्पोर्टेंट अहमियत दी गई. The QWERTY keyboard also became popular because it was the first keyboard and was manufactured by Scholz and Gidan. और ये जो QWERTY कीबोर्ड है ये पॉपुलर इसलिए भी बना है क्योंकि ये पहला कीबोर्ड था और किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था? Scholz and Gidan. The late 19th century so continued product improvement. और 1900 शताब्दी में उस QWERTY कीबोर्ड में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट या सुधार आते गए. The first model appeared around the turn of the century, but they were not successful. और 1900 ईस्वी में उनका फर्स्ट मॉडल अपियर हुआ पर वो इतना सक्सेसफुल या इतना बाजार में चला नहीं. It was not until the
1930s when electricity was more common that the company IBM came on the scene with the electric typewriter. और 1930 में जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज कॉमन हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल आसानी से हो रही थी, उस समय एक IBM करके कंपनी है, उसने एक इलेक्ट्रिक टाइपराइटर बनाया. IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स. द नीड फॉर स्पीड एंड ऑटोमेशन लेड टू द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द टाइपराइटर्स. और जैसे जैसे वो टाइप करते गए, लोगों की स्पीड भी, टाइपर्स की स्पीड भी बढ़ती गई और उसमें सुधार या और टाइपराइटर में फर्दर आगे विकसित होता गया. सच वॉज द इंथुजियाज्म ऑफ द अर्ली यूजर्स. और यह जोश था, जो उत्साह था जो अर्ली यूजर्स में या जो पहले यूजर्स थे उनमें. वन ऑफ दिस वॉज मार्क ट्वेन who wrote to his brother in 1875. और उनमें से एक कौन है? मार्क ट्वेन, जो अपने भाई को 1875 में एक लेटर लिखता है. उस लेटर में वो क्या लिखता है? द मशीन हैज सेवरल वर्च्यूज. आई बिलीव इट विल प्रिंट फास्टर देन आई कैन राइट. वो बोलता है कि इस मशीन में बहुत सारे वर्च्यूज है, बहुत सारी वैल्यूज है और मेरा ये विश्वास है कि वह फास्ट प्रिंट करेगी और जैसे मैं लिखते जाता हूं वैसे उसी स्पीड में वह राइट करेगी. वन में लीन बैक इन हिज चेयर एंड वर्क इट. और बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो टाइपराइटर पे काम करना चाहता है, वो एक चेयर पे बैठकर और अपनी कमर सीधी करते हुए इस पर काम कर सकता है. It piles so many words on one page. और ये क्या करता है? टाइपराइटर बहुत सारे पेजेस को एक पेज पर इकट्ठा कर देता है. पाइल्स का मतलब बंडल्स. It does not mess things or scattered ink blots around. Of course it saves paper. और बोलता है कि ये इंक भी नहीं बिगाड़ता है और इंक के ब्लॉट्स या डॉट्स भी नहीं आते हैं और जो चीजें अपन करना चाहते हैं उसका मेस या उनको तितर बितर नहीं करता है और इसके साथ साथ यह पेपर भी बचाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी शैल बी कंप्लीटिंग आवर रिमेनिंग चैप्टर. सो टेक केयर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.